Morning class. Good morning class. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. So in previous class I have discussed Dunning-Philosopher problem, okay, and bounded buffer problem. Basically the thing is that uh, Dunning, whatever it is, Dunning-Philosopher, whether it is a producer consumer problem, whether it's a bounded buffer problem, or readers and writers problem, all these are have a same type, and the common between all these things that there are multiple key person, you can say, and they are sharing a common issue. Okay, so in dining philosopher problem, there are philosophers who are eating and thinking. They are sitting on a dining table. In dining table there is a bowl of rice. Each philosopher have its own bowl. Okay, each, each philosopher have its own bowl. Okay, but the thing is that the difference is that they are sharing chopstick. Okay, they are sharing chopstick means uh, the philosopher for eating the rice, what they have to do, they must have two chopstick. Okay, by the single chopstick they are not able to eat. अगर उनके पास स्पून होता then definitely they can eat, but chopstick जानते हो कैसे होता है, स्टिक है, ठीक है, तो without two stick or with a single stick you are not able to eat. तो अब है क्या कि here philosopher sharing the chopstick means क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज करती है. द प्रॉब्लम इज दैट कि each process have each philosopher have one single chopstick rather than providing two chopsticks. Each philosopher have one single chopstick. So after thinking and after thinking when they get hungry, so what they do, they will pick up the chopstick and start eating. Okay. So for that, what they have to do, they have to pick the chopstick from his left hand and right hand. But the problem is that if any other any other philosopher is busy with eating, then then one philosopher must have to eat. Okay. So this is called dynamic philosopher problem. यही चीज है कि क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन भी इसमें एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, आपको मालूम है कि क्या है कि इन ए प्रोसेस इफ देयर इज ए शेयर्ड वेरिएबल शेयर्ड बाय some other process, okay, and if it want to read or write, okay, so definitely it must have to enter into the other program code, and that program code is called critical section. Critical section basically है क्या कि किसी एक प्रोसेस का प्रोग्रामिंग एरिया है where any other process can access. Okay, और accessing grant कब होगी, accessing power कब होगी, when these processes are cooperating. Here, if all processes are independent process, then no need to enter into the other code area, and there is no requirement and there is no concept of critical section. तो यहाँ पे भी क्या होगा, शेयरिंग बेसिस पे होगा. तो हमने आपको बताया ये चीज क्या कहते हैं डाइनिंग फिलॉसफर, इसमें चॉपस्टिक शेयर है, इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन है. तो एक अदर प्रोसेस इज यूजिंग चॉप, अदर फिलॉसफर इज ईटिंग, इट मींस it is using chopstick. So other philosopher which wants to eat, okay, must have to wait. तो क्या होगा कि अब इसके लिए क्या है कि ये फिलोसफर, ठीक है, अब ये फिलोसफर क्या है कि ये फिलोसफर ने क्या किया, इट बिकम्स हंग्री. तो उसने चेक किया कि वेदर द चॉपस्टिक इज फ्री. इफ इट इज फ्री, ऑल these two chopsticks are
release and not release. All these two chopsticks are occupied with this cluster. Okay, and after eating, it will release the chopstick and give signals to the other. ठीक है कि ये क्या करेगा, इसको भी है, इसको भी क्या करेगा, सिग्नल दैट नाउ चॉपस्टिक इज फुली। ठीक है, तो अब देख लो क्या है कि इफ दैट पर्टिकुलर फिलोसफर इज ईटिंग, इट मींस इफ दिस फिलोसफर एंड दिस फिलोसफर वांट्स टू ईट, इट मस्ट हैव टू वेट बिकॉज दिस इज ऑक्युपाइड, दिस चॉपस्टिक ऑक्युपाइड बाय, क्लियर है। तो होगा क्या कि आफ्टर ईटिंग या आफ्टर एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन, इट मस्ट हैव टू गिव ए सिग्नल, तो वो सिग्नल दे देगा। जब ये देखेगा सिग्नल इज ओके, ये दोनों क्लास पर, ठीक है, तो अगर इसको ईट करना है तो ये अपने एडजस्टेंट पे, जैसे इसको अगर ईट करना है तो इट विल चेक द सिग्नल फ्रॉम दिस क्लास पर एंड इट विल चेक द सिग्नल फ्रॉम दिस, मतलब ये अगर आई है तो i-1 और i+1 इनका दोनों का क्या करेगा, सिग्नल चेक करेगा। क्लियर, तो दिस इज द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सेमाफोर और दिस इज कॉल्ड डायनेमिक ट्रांसफर। हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में किया था। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या है कि देयर इज ए वेयर हाउस वेयर प्रोड्यूसर whatever he produces is stored into the वेयर हाउस या गोदाम में उसको स्टोर करता है। तो द कंज्यूमर इफ यू वांट टू कंज्यूम तो क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा, it will check whether the warehouse is full or not. If it is empty, it means it is not able to consume. Okay, clear है। और on the other hand, for the producer end, it will check whether it is full or not. If it is full, then it is not able to store, or it is not able to produce. तो इसी तरह से क्या है कि बाउंडेड बफर भी इसी तरीके से आ जाता है। ठीक, बाउंडेड बफर में क्या है कि देयर इज अ बफर, या इसे रीडर्स और राइटर्स प्रॉब्लम से यू कैन लिंक इट, means there is a buffer and some wants to read, some want to write. If all are reading, then no problem. If one is writing and all are reading, then problem arises, and when all try to write, then problem occurs. Okay, so it means that it will check that the process which wants to write or read, it will check whether that particular buffer or location is occupied by some other process or program or not. If it is, then it must have to wait. After reading or writing, what will happen? The process will give a signal that this location. Now come to the classical problem. Again, this is a very classical problem that is called स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, आप लोग जाते हो सैलून वगैरह में बाल कटवाने, ठीक है, तो उसमें क्या है कि देयर आर चेयर्स, और उसमें क्या होती है कि बार्बर जो होता है, नाई होता है, वो हेयर कट कर रहा होता है। तो इस बार्बर चेयर जहाँ पे बैठ के बाल कटवाना है, इफ इट इज फ्री, इफ द बार्बर इज फ्री, देन ओके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप जाके बैठ जाओगे। अगर क्या है कि इफ द barber is not free, it means that there are waiting chairs, you have to sit there, and when the barber is free, okay, it will give a signal, then the person who are waiting the waiting chair, और उनकी priority जो होगी या order जो होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, barber start cutting the hair of that particular। तो अब देखो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा होगा आपको, इसमें देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये वेटिंग चेयर्स है, ये बार्बर है, ठीक है, कस्टमर इंटर करता है और द पर्सन व्हिच हेयर इज कट नाउ यू हैव टू लीव द रूम, ठीक है, वो बैठा तो रहेगा नहीं, वो बार बार पैसे दिए और वो चला जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें दो तीन चीजें डाल दी गई है। द फर्स्ट वन इज दैट कि इफ देयर आर नो कस्टमर, इफ देयर आर नो कस्टमर, तो बार्बर क्या करेगा, नहीं क्या करेगा, अपने चेयर पे बैठेगा और सो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीपिंग। ठीक, व्हेन ए पर्सन इंटर इनटू द सैलून, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इफ बार्बर इज स्लीपिंग, तो क्या करेगा, इसको वकअप करेगा, ठीक है, जागो भाई, जागा,
ठीक है, और फिर क्या करेगा ये आकर के यहाँ बैठ जाएगा एंड द बार्बर स्टार्ट कटिंग द हेयर। क्लियर है? अब देखो क्या है प्रॉब्लम क्या आती है, इफ barber is awakened and cutting the hair of the customer, okay, and other person comes for cutting the hair, he see that barber is not free, then what he have to do, he have to sit the waiting chair, the waiting chair पे बैठना पड़ेगा। दूसरा कस्टमर आया, देखा barber is not free, okay, barber is not free, तो क्या होगा कि that person will also sit to the waiting chair and so on। क्लियर है? अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अब वही चीज है कि ये देखो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन एरिया एंड दिस इज द वेटिंग सेक्शन एरिया एंड दिस इज द सिग्नल एरिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्रिटिकल सेक्शन के देयर आर टू टू एरिया। फर्स्ट वन इज द बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन देयर इज द वेटिंग एरिया, ठीक, देन क्रिटिकल सेक्शन एंड आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन देयर इज द सिग्नल। तो अब होगा क्या कि व्हेन बार्बर कंप्लीट्स द हेयर कटिंग, ओके, तो क्या होगा कि नाउ बार्बर इज फ्री। तो अब क्या होगा कि द कस्टमर हु इज वेटिंग फॉर द कटिंग द हेयर, उनमें से कोई एक आएगा और वो क्या होगा जिसको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब उस सिग्नल के लिए अलग प्रोसेसिंग है, अलग एल्गोरिथम है। ठीक है, आप कैसे करोगे शेड्यूलिंग वन बाय वन, या काउंट टोकन दे दिया या कूपन दे दिया, ये सब डिपेंड है क्या कैसे इंप्रूव करते हैं, यू डोंट हैव टू डू इट। तो अब देखो क्या है कि जब बार बार फ्री हो गया, ठीक है, कस्टमर ने छोड़ दिया इसको, पैसे दे दिए, बाहर चला गया, तो कस्टमर हु इज वेटिंग, ठीक है, इट विल गेट द चांस टू चांस मिल जाएगा अपना है। वही चीजें यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन ये हो गया, ठीक, यहाँ पे वेटिंग एरिया हो गया, ये वेट करेगा और ये क्या है, ये सिग्नल है। क्लियर है? तो देखो है क्या, ऑल प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ऑल आर नियर अबाउट सेम, बस उनका क्या है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट कह लो या उनका जो थीम है, ऑल थीम आर सेम। चाहे वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो, डायनिंग फिलोसफर हो, उनमें क्या होगा कि रिसोर्स को शेयर करना है। अगर क्या होता कि बार्बर क्या क्या होते हैं, कई सारे बार्बर होते हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बार्बर, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि हमें किसी एक प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है, ठीक, हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटर इनटू द वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ सिंगल प्रोसेस, ठीक। So if there are one process who wants to enter into the critical section, then no problem. But when multiple processes are trying to enter into the critical section, then problem arises. So only one will get the chance to enter into the critical section, other have to do. When one process completes its execution, it will give a signal। यहाँ पे यही है, ठीक है, बार ने बाल काट लिए, पैसे कस्टमर ने दे दिए, अब क्या होगा, नाउ बार दीजिए सिंगल सिग्नल, और क्या होगा, जिसका नंबर आएगा उसको क्या होगा, वो इंटर करेगा, यहाँ पे बैठेगा, बार स्टार्ट कर देगा कटिंग है, और अपना जो क्या है जो वेट डिटेक्शन, ठीक है, वेटिंग सेमाफोर है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये क्या कहते हैं, ये बार्बर की। If there is no customer, then the barber sleep in his own chair। हमने बता दिया, when a customer arrives, he has to wake up the barber। ठीक, if there are many customer and the barber is cutting a customer head, then the remaining customer either wait if they are empty chair, they are empty chair in the waiting, or they leave if there are no chair। तो दिस इज द barber sleeping। तो एक बात ध्यान रखना कि डाइनिंग फिलोसफर, रीडिंग राइटर प्रॉब्लम, बाउंडेड बफर, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो now this problem is solved by two functions, first one is meant for customer and second one is for barber। ठीक, क्लियर है? तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए क्या किया गया है
एक वेरिएबल लिया गया है सेमाफोर कस्टमर, ठीक, जिसको इनिशियली 0 कर दिया, मतलब कोई कस्टमर नहीं है। सेमाफोर बार्बर है, ठीक है, 0 है, इसका मतलब क्या है कि नो कस्टमर इज कटिंग देयर हेयर, ठीक, यानी कि बार्बर इज स्लीपिंग मोड। एक्सेस नोटेड सीट, ठीक है, मतलब क्या है, सीट इज ऑक्युपाइड, देन इट इज वन। फ्री सीट है, ठीक है, इन फ्री सीट इक्वल टू, तो फ्री सीट मतलब जो वेटिंग एरिया है। ये वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। एक अब देखो क्या है, वाइल ट्रू मींस कस्टमर के लिए ट्रू है। सेम वेट एक फंक्शन ले रखा है, एक्सेस सीट, एक इस सीट को एक्सेस करेगा इफ देयर आर फ्री सीट्स, ठीक है, फ्री सीट को मतलब क्या करेगा, माइनस मार कर सेटिंग डाउन, ठीक, मतलब ये क्या है, इट इज फॉर वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया के लिए। तो अब देखो क्या है, द कस्टमर इंटर इनटू द सैलून, इट विल चेक the will check whether the waiting chairs are free or not. If it is free, then it will sit. फिर क्या है, सेम पोस्ट कस्टमर, ठीक है, अब ये क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, इट विल नोटिफाई द बार्बर दैट आई हैव एंटर्ड इनटू द सैलून, आई आल्सो वांट टू कट माय हेयर, क्लियर है। सेम पोस्ट एक्सेस सीट, ठीक है, वेटिंग सीट पे बैठ जाएगा, ठीक, क्लियर है, मतलब सीट को एक्सेस कर लिया। सेम वेट बार्बर, नाउ देखो दो वेटिंग एरिया है यहाँ पे, ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन दोनों पे आ सकते हैं, ठीक, क्लियर है। एक तो बार्बर का है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक, क्लियर है। इफ देयर आर नो सीट अवेलेबल, वेटिंग सीट अवेलेबल, देन व्हाट विल हैपन, कस्टमर, ठीक है, तो दो यहाँ पे वेटिंग होगी, एक वेट क्या है, कस्टमर वेटिंग फॉर वेटिंग चेयर एंड द कस्टमर, दूसरा वेटिंग क्या है, द कस्टमर हु इज सिटिंग इनटू द वेटिंग चेयर आर वेटिंग फॉर हिज टर्न। यहाँ पे दो चीज, ठीक, क्लियर है, तो दोनों चीजें यहाँ पे दो क्रिटिकल सेक्शन है, ध्यान रखना। तो अब क्या है कि पहले क्या हुआ, एक फ्री सीट इज अवेलेबल, देन क्या होगा, फ्री सीट माइनस, मतलब 5 सीट फ्री है, तो क्या हो जाएगा, एक कस्टमर आया, इट विल सिट इनटू द फ्री सीट, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री सीट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ठीक, कस्टमर ने नोटिफाई किया, बैठ गया, नोटिफाई किया, इसको क्या किया गया, एक्सेस सीट, मतलब वो सीट पे बैठ गया, डेट क्या है, सेम वेट बार्बर, ठीक है। अब क्या है कि वेटिंग चेयर पे बैठ गया, एंड नाउ इट विल वेट, इट विल वेट इफ द बार्बर इज बिजी, इफ बार्बर इज नॉट बिजी, देन क्या होगा, कस्टमर विल गेट चांस और हेयर कटिंग, ओके, कस्टमर इज हैविंग हेयर कट, ठीक, एल्स then SRM post access C, release the log customer, ठीक है, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, अपना हेयर कट करवाएगा, वो क्या करेगा, वेटिंग सीट वाला क्या होगा, रिलीज द लॉक कर देगा, और कस्टमर क्या करेगा, SRM पोस्ट, SRM पोस्ट, ठीक है, एक्सेस सी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिलीज लॉक, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो मतलब क्या है कि देखो कस्टमर के पर्पज से क्या है, कस्टमर विल इंटर इनटू द वेट सैलून, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट इफ द वेटिंग चेयर्स आर अवेलेबल, then okay, it will sit to the waiting chair, otherwise it must have to wait, okay, when it sits into to the waiting chair, it will notify the barber that I have to cut my hair. If the barber is free, then the customer who is sitting in the waiting chair, वो क्या करेगा, it will sit into the barber chair for haircut, okay, क्लियर है। अब वो हेयर कट कराएगा, ठीक, क्लियर है, और अगर क्या है, बार्बर इज बिजी, ठीक, तो क्या करेगा, इट विल वेट फॉर द फॉर इट्स टर्न, क्लियर है। तो अब क्या होगा, बार्बर आया, बार्बर इज फ्री, कस्टमर विल सिट टू द बार्बर चेयर, बार्बर स्टार्ट कटिंग द हेयर, आफ्टर कटिंग द हेयर, ठीक, क्या करेगा, कस्टमर विल रिलीज द लॉक, ठीक, क्लियर है। नाउ बार्बर इज फ्री, तो ये तो हो गया, इट इज मेंट फॉर कस्टमर। अब बार्बर के लिए क्या होगा, बार्बर क्या है कि इफ इट इज फ्री,
ठीक है, देयर इज नो कस्टमर, तो वो क्या करेगा, मौके का फायदा उठाएगा और वो सो जाएगा। ठीक, वेट कस्टमर, वेट फॉर ए कस्टमर स्लीप। ठीक है, वेट म्यूटेक्स फंक्शन चलेगा, व्हेन वेट 1 इज एग्जीक्यूटेड इट डिक्रीमेंट वैल्यू 0 मोटेक्स टू प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ अपडेट्स। ये क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, बार्बर के केस में क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझना, इफ बार्बर इज फ्री और होल्डिंग ए सीट, ठीक है, नो अदर कस्टमर सिट ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर। ठीक है, तो इट मस्ट हैव टू बी नंबर ऑफ फ्री सीट्स। ठीक, अगर जो वेटिंग एरिया के लिए है, ठीक है, तो अगर देखो क्या है कि इफ वेटिंग चेयर्स आर क्या कहते हैं, आर कॉम्पिटिटिव क्लास। ओके, तो अब क्या है कि बार बार जब फ्री है, एक पर्सन वेटिंग चेयर से उठेगा, ठीक है, और आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री सीट, जैसे ही एक कस्टमर वेटिंग चेयर से उठेगा और बार्बर की सीट पे बैठेगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री सीट जो वेटिंग चेयर है उनकी नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ फ्री सीट एक बढ़ गया। सेम पोस्ट बार्बर चलेगा। ठीक है, ब्रिंग कस्टमर, ठीक है, एक वेटिंग चेयर इस जो नंबर है वो एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सीट खाली की गई है और वो बार्बर सीट पे आके बैठे। ठीक, ब्रिंग कस्टमर फॉर हेयर कट, उसके बाद क्या होगा, जो म्यूटेक्स लॉक कर दिया गया था, मतलब क्या है कि कस्टमर हेयर कट करवा रहा है तो अदर के लिए क्या होगा, वेटिंग होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिलीज द म्यूटेक्स ऑन द चेयर। ठीक, और वो क्या करेगा, बार बार इस कटिंग। ठीक है, तो जो म्यूटेक्स लॉक था, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, बार बार कट करेगा। इसके बाद क्या होगा, बार बार जैसे ही कट खत्म कर चुकेगा, जैसे ही क्या होगा, कस्टमर बार बार की चेयर छोड़ेगा, ठीक, वो क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा एंड एक्टिविटी। तो हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, क्लियर है, तो देखो क्या है कि सब में देखो एक अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो सारे के सारे सब सेम। ठीक है, चाहे वो रीडर्स राइटर हो, बाउंडेड बफर हो, डायनेमिक फिलोसफर हो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो, या स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, सब के सब में देखो सब क्या है, थीम एक है, प्रॉब्लम एक ही टाइप की है। प्रॉब्लम इज दैट कि देयर आर मल्टीपल आइटम्स एंड ऑल आइटम्स आर शेयरिंग ए कॉमन रिसोर्स, बस यही चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन सेमेस्टर। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम, लिमिटेशन कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो इन सेमाफोर इज द प्रायोरिटी इन्वर्जन। ठीक है, प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब क्या है कि इफ देयर आर इज सिंगल प्रोसेस वेटिंग फॉर क्रिटिकल सेक्शन देन नो प्रॉब्लम। ओके, बट इफ देयर आर मल्टीपल प्रोसेस which are waiting for critical section, then there is a problem. There is a problem of priority. Means अगर जैसे क्या है ना कि हम पर हमें क्या करना है इन क्लास, हमने क्या करा कि हमें वी हैव टू पिक 5 स्टूडेंट, हम गए और मॉनिटर टू क्लास रिप्रेजेंटेटिव आई हैव सेड टू हिम दैट call any 5 students. So this is the problem for class representative among 60 students, कौन से वो 5 स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मस्ट हैव टू फॉलो और एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि स्टूडेंट हैविंग having marks greater than 60 or 75% से जो ज्यादा मार्क्स हैं, या स्टूडेंट हैविंग स्टार्टिंग विद देयर नेम ए और बी। ठीक, क्लियर है, या मतलब क्या कहते हैं, ऑड नंबर वाले कोई 5 स्टार्टिंग के आ जाएं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम अप्लाई करना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन की भी प्रॉब्लम आती है। इफ देयर आर सिंगल प्रोसेस वेटिंग फॉर क्रिटिकल सेक्शन देयर नो प्रॉब्लम,
बट इफ देयर आर मल्टीपल प्रोसेस तो अब किसको चांस दिया जाए, ठीक। प्रियोरिटी कैसे सेट करें, मतलब कि P1 P2 P3 P4 है, तो P1 को दिया जाए, P2 को दिया जाए, P4 को दिया जाए, किसको दिया जाए, तो एक ये प्रियोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम है। अब देखो क्या है, डेडलॉक, सपोज ए प्रोसेस ट्राइंग टू वेक अप another process which is not in a sleep state, therefore a deadlock means lock indefinitely, ठीक है। एक प्रोसेस क्या है, उसने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट किया बट इट इज नॉट गिविंग ए सिग्नल, ठीक है, सिग्नल दे ही नहीं रहा, तो इट मींस दैट कि ऑल अदर प्रोसेस वर वेटिंग फॉर क्रिटिकल सेक्शन मस्ट हैव टू वेट इंडेफिनेटली, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डेडलॉक की कंडीशन है, ठीक है। The operating system has to keep track of all calls to wait to signal to sender, ये भी है वही चीज है, प्रियोरिटी इन्वर्जन का है, इसकी इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि जो क्या है, प्रोसेस यू आर वेटिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन और वेटिंग फॉर क्रिटिकल सेक्शन, तो उसका क्या करना पड़ेगा, एक कीप ट्रैक रखना पड़ेगा, उसको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, सिग्नल द टू सिग्नल द सेमाफोर, सेमाफोर के सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि मतलब वो उनका चांस कब है, ठीक। तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो दो these three are the limitation। और देखो क्या है, एक प्रॉब्लम ये भी है, सेरेब्रल प्रोसेस में एक्टिव साइमल्टेनियस। अब है क्या कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस, in these multiple process some process are want to enter into the critical section, एक critical section में कुछ प्रोसेस इंटर करना चाहते हैं, ठीक। और बाकी अदर क्या है कि दे वांट टू इंटर इनटू द, जैसे 10 प्रोसेस हैं तो 5 किसी एक प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं, 5 अदर को अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या है कि इसमें क्या होता है कि देयर इज नो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म कि कौन वेट करना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, देयर इज नो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो एक the thing may happen that is some process, ठीक है, some process। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि एक वेट होता है, देखो हमने आपको बताया कि ना, जैसे ये है क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, वेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल होता है। तो अगर क्या है कि इफ सम प्रोसेस चेंज इट, मीन्स क्या है, इंटरचेंज करना, ठीक। मीन्स क्या है कि rather than writing wait here and signal here, it interchange, इसको इंटरचेंज, मतलब सिग्नल पहले आ गया, वेट पहले। अब बताओ, कोई बताए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट टेल मी, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर वेट की जगह पे, मतलब क्रिटिकल सेक्शन के पहले वेट होना चाहिए, वहां पे सिग्नल किसी प्रोसेस में कर, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई स्टूडेंट बताए। राहुल मौर्य बताओ, 2 नंबर 84। राहुल मौर्य, देख लो, अगर बोलोगे नहीं तो मैं ऑप्शन लगा दूंगा, बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि सो जाओ तुम। जल्दी बताओ, राहुल वर्मा, 2 नंबर 86। यस सर। अरे जगह हुए, चलो बताओ। हाँ, मैंने क्या पूछा, थोड़ा क्लास में अटेंटिव रहा करो भाई। प्रॉब्लम समझ में आएगी सबको। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पे वेट होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नल होना चाहिए, इफ एनी प्रोसेस इंटरचेंज दिस थिंग, तो मतलब क्या आएगा, बताओ राहुल वर्मा, या जिसको समझ में आया वो बताए। रोहन शर्मा, 2 नंबर 92।
तुम लोग ऑन करके सो यस जाते हो। सर। हाँ रोहन शर्मा बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा देखो इंटरेक्ट करो, पता चला हम बोले जा रहे पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना समझ में आ तो सर इसमें बेसिकली ये आप पूछ रहे हैं ना कि इसमें क्या दिक्कत होगी जो ये लिखा है हाँ इसमें। देखो हमने आपको तो बताया। इसमें ये है, हाँ हाँ हाँ, इसमें बेसिकली ये होगा कि एक प्रोसेस जो हमारी ग्रीन वाली है, पहले उसने सिग्नल किया तो वो फिर दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रही है। और लेकिन बेसिकली दिक्कत ये है कि दोनों मतलब एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंडेंट है और ऐसे साइकिल एक साइकिल बन गया इंटरडिपेंडेंसी का। तो इसकी वजह से कोई प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनपुट का आउटपुट का वेट कर रहे हैं जो बेसिकली नहीं मिल रहा है। तो डेडलॉक हो गया है और ये यहाँ पे फंसी रहेंगी जब तक डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता। चलो, नहीं बहुत ढंग से नहीं बताया, और कोई बताए। तानिया सिंह बताओ, जो नंबर 96, तानिया ही है ना, तानिया सिंह जो नंबर 96। इसमें जो बोलोगे नहीं मैं एब्सेंट कर दूंगा। 96 नंबर नोट हो। और कोई बताए। शिवांग अग्रवाल बताओ 102। शिवांग अग्रवाल। चलो 102 ही एब्सेंट कीजिए। या गुप्ता 91। या गुप्ता 91। सर इसमें लूप जो होगा इनफिनाइट टाइम से ही चलेगा। सर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं वेट अब नहीं, देखो तुम लोग प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, ये देखो क्रिटिकल सेक्शन है तुम्हारा। प्रॉब्लम समझ लो तुम लोग, ये है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक। तो अब देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस इंटर कर चुका है तो अदर मस्ट हैव टू वेट। ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे वेट म्यूटेक्स लगाया जाता है। वेट म्यूटेक्स का मतलब क्या है कि नाउ अदर प्रोसेस हु आर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन मस्ट हैव टू वेट। क्लियर। और द प्रोसेस विच एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स प्रोसेस, वो क्या करेगा, इट विल गिव ए सिग्नल म्यूटेक्स। ठीक। लेकिन क्या है कि किसी एक प्रोसेस ने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे वेट होने के बजाय यहाँ सिग्नल हो गया, यहाँ पे वेट हो गया। तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, जल्दी करो, टाइम होता जा रहा है। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई। यहाँ पे वेट म्यूटेक्स हुआ करता था। वेट म्यूटेक्स का मतलब क्या है कि अदर प्रोसेस मस्ट हैव टू वेट। ठीक। हाँ कोई बता रहा है। यस सर। हाँ सर बताओ। इसमें सर सिग्नल क्या करेगा सर हर हम्म? प्रोसेस को सर सिग्नल मिला करेगा सर क्रिटिकल सेक्शन हाँ में जाने के लिए। तो हाँ ठीक सारी है, प्रोसेस मतलब क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएंगी। ये चीज है, और बस बिल्कुल सही तुमने बताया। तो ये देखो ये लिखा ना, सेवरल प्रोसेस में एक्टिव साइमल्टेनियस। तो है क्या कि रादर देन वेटिंग सबको सिग्नल मिल गया। ठीक। तो क्या करेंगी, सारी की सारे प्रोसेस क्या होंगी, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। और जब क्या होगा कि इफ मोर देन वन प्रोसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, तो उसमें कुछ रीड करेंगे, कुछ राइट करेंगे, वट एवर। ठीक। तो अब क्या होगा, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। ठीक। तो रेस कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या है कि इट मे पॉसिबल दैट प्रोसेस में गेट इनकंसिस्टेंट। ठीक। क्लियर है। और क्या होगा, सिग्नल सबको मिल गया और यहाँ पे क्या है, सबको वेट भी दे रहा है। ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट टाइम के लिए वेटिंग हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, सबको सिग्नल दे रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन स्टेट। ठीक है। अब देखो क्या है, दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई प्रोसेस, ठीक, क्या करता है, यहाँ पे वेट म्यूटेक्स है, ठीक है। तो आफ्टर क्या कर रहा है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस मस्ट हैव टू गिव ए सिग्नल। हमने आपको बताया कि जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजेगा जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं, तो उसमें से कोई एक
सिग्नल एक प्रोसेस को चांस मिल जाएगा कितना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, रेदर देन गिविंग सिग्नल वो क्या कर रहा है, वेट म्यूटेक्स दे, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से वेटिंग हो ही रही है, क्रिटिकल सेक्शन जो एग्जीक्यूट कर चुका है उसने वेट म्यूटेक्स चला दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अदर प्रोसेस को सिग्नल मिलेगा ही नहीं टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो वो क्या है इंडेफिनिट टाइम के लिए वेटिंग कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक। क्यों वेटिंग चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसको वेट मिल रहा है, ठीक, क्लियर है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली वेट करते जाएंगे, वेट करते जाएंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल मिला है, ठीक, क्लियर है। तो एक अगर प्रोसेस ने गलती कर दी, रेदर देन गिविंग सिग्नल म्यूटेक्स, तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिया, सिग्नल के बजाय उसने वेट वाला फंक्शन चला दिया, ठीक, यहाँ पे वेट चला दिया। तो क्या होगा, ये वेट करते, वेट सिग्नल दे दिया तो हर एक प्रोसेस को वेट सिग्नल ही मिला, ठीक है। तो ये पहले से ही वेट कर रहे थे और उनको सिग्नल मिल ही नहीं रहा टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट करते जाएंगे एंड इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट ब्लॉकिंग भी कह सकते हो और यू कैन से डेडलॉक, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक। सब लोग अटेंडेंस तो शायद लगा ही चुके हो, है मानोगे नहीं तुम, ठीक है। तो अभी मैं इसके जस्ट बाद क्लास लूंगा, उसमें अटेंडेंस लूंगा, उसमें मार्क कर लूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ये खत्म कर दूंगा आज। तो अब देखो क्या है, इसके बाद मैं तुरंत क्लास लूंगा, तो अभी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, इसके बाद तुम लोग फिर लॉग इन करना, अटेंडेंस में उसमें लूंगा, ठीक है। तो अभी अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये जो सेमाफोर में प्रॉब्लम है कि प्रोसेस क्या है कि बहुत ही उनके जो बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है मस्ट बी इन ए वेरी हाई एक्टिव स्टेट, ओके। अदरवाइज क्या है कि अगर एक प्रोसेस ने कुछ गड़बड़ कर, ठीक है, एक प्रोसेस ने यहाँ पे वेट की जगह सिग्नल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑल प्रोसेस कहाँ है, हैव गेट द सिग्नल टू इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, सब लोग क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर जाएंगे और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाएगा, रेस कंडीशन अराइज हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, एक ने क्या किया, रेदर देन गिविंग सिग्नल म्यूटेक्स, उसने क्या कर दिया, वेट म्यूटेक्स ऑन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, डेडलॉक कंडीशन अकर होगी, ठीक, क्लियर है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब देखो क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। ए वन इज द क्रिटिकल रीजन एंड द सेकंड वन इज द मॉनिटर, ठीक है। तो अभी 1 मिनट बाकी है, तो अभी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा बच्चों, तो क्या करना है, आपको फिर से लॉग इन करना है और उसमें अटेंडेंस, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी ना तुम लोगों को, मतलब क्या कहते हैं, जो क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गई। तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कब होती है, इफ देयर आर मल्टीपल प्रोसेस, और इफ ऑल प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आप ऐसा सिस्टम तो जनरेट कर ही नहीं सकते कि मतलब सबके लिए अलग अलग आप चीजें कर लो, जैसे अगर आप क्या करो कि जितने बच्चे हैं उनके लिए अलग कमरा फिक्स कर दो, ऐसा पॉसिबल